السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ۔ موبائل پر فارس کا میسج موصول ہوا تھا۔ جنت اپنی بوا کے پاس تھی، وہ اسے واپس لا رہا تھا۔ میسج پڑھتے ہی سائرہ جائے نماز پر تسبیح لیے بے ساختہ سجدے میں گر گئی تھی۔ یہ سجدہ شکر تھا، پلٹنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اور بدلنے کے لیے تھا۔ وہ اپنا احتساب کر رہی تھیں۔ ایک یتیم بچی کے لیے ان سے بھول ہوئی تھی۔ انہیں وہ وقت اچھی طرح سے یاد تھا جب بیماری کے دنوں میں ان کے والد نے انہیں فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا۔ اپنے پاس بٹھا کر انہوں نے جنت کمال کے متعلق وصیت کرتے ہوئے اپنے کوئٹہ والے مکان کے کاغذات کے ساتھ ساتھ ایک بند لفافہ ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا تھا۔ اگر کبھی خاندان میں جنت کی زندگی تنگ ہو جائے تو اسے کھول لینا۔ وہ لفافہ اگلے 5 سالوں تک ان کی الماری میں محفوظ اور بند پڑا رہا تھا۔ اس لفافے کو کھولنے کا خیال انہیں پورے 5 سال بعد اس وقت آیا تھا جب برہان اسے طلاق دے چکا تھا اور نفیسہ وفات پا چکی تھی۔ سگے چچا نے جنت پر تسلط جما لیا تھا۔ وہ اس کا رشتہ زمان صفدر کے ساتھ طے کر رہے تھے۔ وہ جنت کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس تصور کرتی تھیں، سو انہیں ایک یہی حل نظر آیا تھا۔ بند لفافے میں ایک کاغذ تھا جس پر جمیلہ داؤد شیرازی کا نام اور شیرازی مینشن کا ایڈریس لکھا تھا۔ نیچے کہیں شیرازی انٹرپرائزز کا فون نمبر بھی تھا۔ سنہری حروف کا ایک قیمتی بزنس کارڈ جو یقیناً قریبی ساتھیوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور چند دعوت نامے۔ ان میں ایک دعوت نامہ کسی حماد شیرازی کی سالگرہ کا تھا۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ انہیں ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی تھیں۔ شیرازی خاندان کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ کے تعلقات کتنے دیرینہ اور گہرے رہے تھے، اس کا اندازہ ان کارڈ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ چونکہ شیرازی خاندان ایک نامور خاندان تھا، سو اس ایک لمحے میں کئی خبریں، کئی قصے اور کئی باتیں ان کے ذہن میں گھوم گئی تھیں۔ لفافے میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس میں جمیلہ داؤد کے نام ایک تحریر لکھی تھی۔ میری نواسی جنت کمال اب آپ کی امانت ہے۔ مختصر سی عبارت، مزید کوئی حوالہ، کسی طرح کو کوئی اشارہ نہ تھا۔ پہل تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں، مگر پھر شام تک انہوں نے اپنے بیٹے کی مدد سے جمیلہ داؤد سے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ جمیلہ داؤد آج کل اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ایڈریس ملتے ہی اگلے دن وہ ملاقات کے لیے اسلام آباد ان سے ملنے چلی گئی تھیں۔ وجدان ہاؤس کے گیٹ پر سخت سیکیورٹی تھی۔ بغیر کسی تعارف یا جان پہچان کے انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ آپ مسز شیرازی سے کہہ دیں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ان سے ملنے آئی ہے۔ انہوں نے وہ لفافہ بھی اندر بھجوا دیا جس میں کچھ کارڈز اور وہ خط تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کھول دیا گیا۔ ایک باوردی ملازم انہیں اندر لے گیا۔ شاندار گھر کے اندرونی احاطے سے ہوتے ہوئے لاؤنج سے وہ پرتعیش ڈرائنگ روم میں آ گئی تھیں۔ سامنے ہی ایک سوبر سی خوبصورت خاتون ویل چیئر پر آتش دان کے سامنے بیٹھی تھی، کارڈ ہاتھ میں لیے، کچھ حیرت، کچھ تڑپ اور کچھ صدمے سے انہیں دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ؟ انہیں یوں لگا جیسے یہ نام ان خاتون کے اندر ایک زندگی سی دوڑا گیا ہو۔ رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جنت کمال کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بچی جسے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پالا تھا، وہ طلاق اور ماں کی وفات کے بعد سخت ترین حالات سے گزر رہی تھی۔ ان کے لہجے اور انداز سے بے بسی جھلکتی تھی، جیسے وہ جنت کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں۔ وہ ان کے پاس صرف اس لیے آئی تھیں کیونکہ خط میں ان کا نام لکھا تھا۔ جمیلہ داؤد شیرازی نے پوری بات بہت خاموشی اور توجہ سے سنی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہی تھیں، پھر جیسے انہوں نے بغیر کسی تردد کے جنت کمال کا رشتہ مانگ لیا۔ سائرہ اپنی جگہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھی رہ گئیں۔ وہ اس لیے یہاں نہیں آئی تھیں، یہ سوچ کر تو ہرگز نہیں آئی تھیں، اور جس نوجوان کے لیے وہ خاتون رشتہ مانگ رہی تھیں، وہ نوجوان تو… ان کا دماغ معاف ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی۔
एक तरफ ज़मान था तो दूसरी तरफ उन्होंने सर उठाकर जमीला दाऊद को देखा। जमीला दाऊद कोई मामूली खातून ना थी, ना ही शिराज़ी ख़ानदान कोई आम सा ख़ानदान था। और जिसके लिए वो रिश्ता मांग रही थी, वो नामवर बिजनेस टाइकून आज़म शिराज़ी का पोता फारिस विजदान था। कितनी ही देर तक वो सोच में गर्क गुमसुम बैठी रहीं। बहुत सी बातें थीं, सवालात थे, खदशे थे, मगर चूंकि ये रास्ता, ये घर उन्हें उनके वालिद ने दिखाया था, सो ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते पर गौर करने लगी थी। फारिस विजदान का प्रपोजल कबूल करते वक्त उन्हें लगा था वो ठीक कर रही हैं। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं, इरादों में कोई झोल नहीं, फैसलों में कोई मतलब, कोई गर्ज नहीं। लेकिन फ़र्क था, हर चीज़ में फ़र्क था। ऐसा रिश्ता सिदरा के लिए आता तो यकीनन वो इनकार कर देती। जिस इंसान की ज़ात शुबहात के दायरे में घूम रही हो, उसका इंतखाब वो अपनी बेटी के लिए हरगिज़ ना करती। ताहम ज़मान के मुकाबले में उन्हें वो मुनासिब लगा था। उन्होंने हर ख़याल पसे पुश्त डाल दिया था, हर मनफी सोच की तरदीद कर दी थी। उन्होंने रिस्क ले लिया था। वो उसे अपनी औलाद कहती थीं और भूल गई थीं, औलाद के मामले में रिस्क नहीं लिए जाते। उन्होंने जमीला दाऊद को जन्नत के बारे में ज़्यादा आगाह नहीं किया था। वो उसका माज़ी उसकी तलाक की वजह तक छुपा गई थीं। सभी मामलात तय करके वो लाहौर वापस आ गईं। 2 दिन बाद निकाह और रुखसती सरअंजाम पा गई और जन्नत कमाल उस घुटन ज़दा माहौल और अपने सगे रिश्तों के तसल्लुत से आज़ाद होकर इस्लामाबाद चली गई। बज़ाहिर सब ठीक था, मगर उजलत में किए गए उस रिश्ते को लेकर वो कभी-कभार फ़िक्रमंद ज़रूर हो जाया करती थी। अम्मार के सवालात, उसका गुस्सा, फ़ारिस विजदान शिराज़ी से मिलने वाली अफ़वाहें, किस्से, कज़िये, वसवसे, मगर वो जैसे-तैसे खुद को मुतमईन कर लेती, अपने ज़मीर के सामने डट जाती, अपने नफ्स का हाथ थाम लेती और यकीनन थामे ही रखती अगर जन्नत के घर छोड़ देने की खबर ना मिलती। इस एक लम्हे में उन्हें एहसास हुआ था कि आग से बचाने के लिए उन्होंने उसे गहरे समंदर में धकेल दिया है। आगाही का वो लम्हा उन पर अपनी ज़ात के हवाले से बहुत सी हकीकतें आश्कार कर गया था। उनके वालिद ने एक रास्ता दिखाया था और वो आखिरी रास्ता था, आखिरी ऑप्शन, आखिरी चांस, आखिरी राह। जब ख़ानदान में कुछ ना रहे, कहीं ना रहे, कोई जगह, कोई मकाम, कोई आसानी, कोई रिश्ता, कोई एहसास ना रहे और वो खुद को हर किसी से जुदा और अलग समझती रहीं, मुखलिस और हसास गर्दानती रहीं। मगर अब उन पर इदराक हुआ था कि वो भी इसी ख़ानदान का हिस्सा थीं, जिसने जन्नत कमाल के साथ ज़्यादतियाँ की थीं। उन्होंने भी अपना फ़ायदा, अपनी मसलहत, अपनी आसानी देखी थी। उन्होंने भी जन्नत कमाल से छुटकारा पाना चाहा था। वो लिफ़ाफ़ा, वो ख़त, वो कभी खुलना नहीं चाहिए था। वो आखिरी ऑप्शन सिर्फ़ एक ऑप्शन ही रहना चाहिए था। वो कितनी नादान थी। अपने वालिद की मोहब्बत, उनकी वसीयत, उनका एहसान, उनकी ख़्वाहिश, उनका इम्तिहान समझ ही ना पाईं। उन्होंने खुद को जन्नत के मामले में बेबस समझा था, मगर वो बेबस नहीं थीं। ख़ानदान भर की नाराज़ी तो उन्होंने वैसे भी मोल ले ली थी। फिर उसका इंतख़ाब वो अपने किसी बेटे के लिए क्यों नहीं कर सकी थीं? अगर वो वाक़ई में रहमदिल और हसास थीं, तो जन्नत कमाल की जगह उनके अपने घर में, उनकी अपनी औलाद की ज़िंदगी में क्यों नहीं बन पाई थी? वो अपने किसी भी बेटे से उसका निकाह करवा सकती थीं। अम्मार तो खुद कह रहा था। मगर जन्नत कमाल एक तलाक याफ्ता बांझ लड़की उन्हें अपनी औलाद के लिए क्यों कर कबूल हो सकती थी? ये एक तल्ख सच्चाई थी, सांप जैसी, वजूद को गिरफ्त में लेकर सख्ती से जकड़ने वाली। एक तल्ख, एक बेरहम सच्चाई। पूरे 27 दिन उन्होंने जन्नत की खैरियत मांगते, उसकी वापसी की दुआ करते गुजार दिए थे और अब जब वो मिल गई थी तो वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शायद ये ज़मीर ही था जो ज़ात के आईने को शफ़ाफ़ करता जा रहा था, नीयत पर पड़ी हुई खुदगर्ज़ी की धूल मट्टी को बेदर्दी से उड़ाता जा रहा था। जन्नत कमाल उनके वालिद की अमानत थी और उन्हें लगा वो इस अमानत का पास नहीं रख पाई हैं। वसीयत पर अमल नहीं हुआ है और ये दर्द, ये कसक, ये एहसास निदामत ताउम्र उनके साथ रहने वाला था। खिड़कियों पर दबीज मखमली पर्दे गिरे हुए थे, कमरे में एसी की ठंडक थी। बलगजी सी रोशनी का मध्यम सा तासुर कमरे की हर एक शय को नुमाया कर रहा था। पंखे पर नजरें जुमाए चंद लम्हों तक वो पलकें झपकाती रही, फिर कोहनियों के बल उठ बैठी।
रेशमी मुलायम शहद रंग बाल कोने से निकलकर चेहरे के इतराफ में और कंधे पर ढीले होने लगे। तकिए के सहारे बेड क्राउन से टेक लगाते उसने बाजू फैलाकर अंगड़ाई ली। सफर की थकान उतर चुकी थी, नींद मुकम्मल, जहन कुछ हद तक पुरसकून था और तब तक वो पुरसकून ही रहा था जब तक उसे बराबर में किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देती वो अपनी जगह सुन हुई। सुबह के 3 बजे जब वो घर पहुंचे थे तो वो जिद पर अड़ गई थी कि उसे अलग कमरा ही चाहिए, और फारिस ने ये कहकर बेडरूम छोड़ दिया था कि वो कहीं और सो जाएगा। उसे नहीं पता था कहीं और असल में वही बेडरूम है जो उसके हवाले किया जा रहा है। वो तो इस बात पर भी हैरान हुई थी कि फारिस ने इतनी आसानी से अपना कमरा इसे क्यों दे दिया है। उकदा तो अब खुला था, उसे जिद करने से वो कैसे बाज आ सकता है। घर उसका, कमरा उसका, दरवाजे उसके, खिड़कियां उसकी। जन्नत की आंखों में नागवारी और चेहरे पर सख्ती दर आई। चंद लम्हों तक बाजू की दर्द से झांकती उसकी बंद आंखों को देखती रही, फिर सर उठाकर मध्यम सी रोशनी में इतराफ कर जायजा लिया। कमरे की सेटिंग वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गई थी, सिर्फ बेडनुमा सोफा गायब था जो सामने दीवार के साथ लगा हुआ था। उसकी जगह 2 सिंगल शाही सोफे और कॉफ़ी टेबल रखी थी। ड्रेसिंग टेबल पर की चेन कैचर इस उसकी चेन कैचर हेयर पिन्स रखे थे। वो हैरान हुई, परफ्यूम ब्रश और फेस पाउडर भी। सफरी बैग हनूज वार्डरोब के साथ मौजूद था। किसी ख्याल के तहत वो बेड से उतरकर वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। स्लाइड करके पट खोले, दोनों हाथ हल उठाकर बॉक्स गिरफ्त में लिया, फिर एहतियात से दीवार घेर खिड़की के पास पंजों के बल बैठ गई। पर्दा हल्का सा सिरकाकर उसने बॉक्स खोल दिया था। तेज रोशनी की लकीर नीम तारीकी को चीरती हुई बेड तक पहुंच गई। सोया हुआ वजूद जरा सा कसमसाया कि रोशनी सीधा बंद आंखों पर पड़ रही थी। वो कुछ बेकरारी से अपनी चीजों को उलट पुलट कर देखने लगी। खत, डायरीज, तलवार, घड़ी, चांदी की जंजीर, नन्हा सा लॉकेट, कार्ड्स, स्टिकर्स, तस्वीर। सद शुक्र कि उसकी हर एक शय सलीके और हिफाजत से मौजूद थी। उसने अपने नाना की तस्वीरें बाहर निकाली, नम आंखों से उन्हें देखा, उन्हें छुआ, फिर सीने से लगाया। कुछ देर तक वो इसी पोजीशन में बैठी रही, फिर तसल्ली करके बॉक्स अलमारी में रखने के बाद मुड़ी और अपनी जगह रुक गई। बेड पर पुश्त के बल आड़ा तिरछा लेटा फारिस जरा सा सर उठाए उसे ही देख रहा था। आंखें अभी भी नींद से बोझल और दोबारा बंद होने का मुकम्मल बेकरार थीं। वो जन्नत का चेहरा देख चुका था। वो शदीद गुस्से में लग रही थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे रूम शेयर नहीं करना। गेस्ट रूम का एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा था। 5-6 घंटों तक मुसलसल गाड़ी ड्राइव करने वाले की आवाज़ ताहाल थकावट से चूर और खुमार भरी थी। और तुम चाहते हो मैं इस बात पर यकीन कर लूं? वो उसकी स्टेटमेंट पर अच्छी खासी तप गई। नहीं। फारिस ने अपना सर वापस तकिए में गाड़ लिया। नहीं। जन्नत का मुंह खुला, फिर आंखें फैली फैली, फिर तप चढ़ी, तन बन करती पास आई, सख्ती से तकिया हटाया, लिहाफ खींचा, फिर उसका बाजू हिलाया, मगर मजाल है जो उसकी नींद में जरा सा भी खलल पड़ा हो। ऐसे बेहोशी की नींद भला कौन सोता है। उसका पारा मजीद चढ़ गया, मगर जब्त करके वॉशरूम में घुस गई। आईना सामने था, उसने खुद को देखा। रंगत जर्द, सेहत कमजोर, आंखों के गिर्द हल्के काफी गहरे लग रहे थे। अरसा हुआ उसने आईना देखना छोड़ दिया था कि देखने पर अजीब सी तकलीफ का एहसास हुआ करता था, लेकिन अब जब खुद को देखा तो इदराक हुआ वो अपना ख्याल वाकई में नहीं रख रही थी। बुआ ठीक ही कहती थी, वो जिंदगी से भटक गई थी, अपने आप से बेपरवाह हो गई थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर थी। एक कड़ी निगाह सोए हुए वजूद पर डाली, खुद ही अपनी हिम्मत बढ़ाई, मजबूती पकड़ी, इरादे बांधे। कमरा तो वो बिल्कुल शेयर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब फारिस रिजवान की मर्जी नहीं चलेगी, ना तो वो उसकी धमकियों का असर लेगी और ना ही उसके रोब में आएगी। उसने सोचा वो मिसेस शराजी के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। फारिस से क्या बैद गेस्ट रूम का एसी खराब कर दे। वो मंसूबे बनाती सीढ़ियाँ उतर रही थी और इतराफ का जायजा लेती जा रही थी।
انڈور پلانٹس پہ ابھرتی ہوئی خاموش زندگی، سفید ٹائلز سے جھلکتا سیلنگ کی روشنیوں کا عکس، سمٹے ہوئے مخملی پردوں کے اس پار نظر آتا باہر کا پرفسوں منظر، سوئمنگ پول کا ساکت پانی اور آسمان کا نیلا رنگ۔ مسز شرازی کہاں ہیں؟ وہ اپنے اسٹوڈیو میں ہیں۔ ملازمہ اس کے سامنے مؤدب سی کھڑی ہو گئی تھی۔ میم، آپ ناشتہ کر لیجئے۔ ایک ہاتھ سے ڈائننگ ہال کا راستہ دکھاتے اسے بہت ادب سے سر جھکا کر کہا تھا۔ اس کی نگاہیں راہداری کے اختتام پر اسٹوڈیو کے وسیع دروازے تک گئیں، پھر کچھ سوچ کر وہ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کچھ وقت مسز شرازی کے ساتھ ان کے اسٹوڈیو میں گزارا۔ گزشتہ 27 دن کی کچھ حقائقیں تھیں، اداسیاں تھیں، احساسات تھے جو دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ تمہارے چلے جانے سے یہ گھر بہت خاموش، بہت ویران ہو گیا تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، چائے پر کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا، اسٹوڈیو میں آتی ہی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر بہت پشیمان اور شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، ایک بار پھر معذرت کی۔ بہت عجیب سے خیال آتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، مجھے تو یہ ڈر تھا کہیں تمہیں کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ انہوں نے رک کر ایک گہرا سانس لیا۔ جنت کا سر مزید جھک گیا۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر گرفت جمائی تو اسے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس طرح دوبارہ نہیں کرو گی؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، پہلے خود کوشش کرو سلجھانے کی۔ نہیں سلجھ رہا تو کسی بڑے سے کہو، لیکن اس طرح خاموشی سے گھر چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ہاں، فرار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں آنٹی، میں یہاں۔ اس کا خوف، اس کی فکر، اس کی پریشانی ابھی بھی وہیں تھی۔ ڈیلیوری کے بعد جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، فی الحال کچھ مت سوچو۔ گال پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا، اپنی صحت کا خیال رکھو، دیکھو بہت کمزور ہو گئی ہو۔ سامنے ہی کینوس پر ان کی پینٹنگ ادھوری تھی، پھول کی چند پنکھڑیاں رنگین تو چند بے رنگ سی تھیں۔ اتنے دنوں تک انہوں نے رنگوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے دکھ ہوا، اٹھ کر کینوس اسٹینڈ ان کے سامنے رکھا۔ کلر ٹیبوز، پیلٹ اور ڈھیر سارے برش ٹیبل پر اکٹھے کیے۔ یہ ایسے نامکمل سی بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اس نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ تو یہ طے تھا، اس پینٹنگ نے پورے 1 ماہ بعد مکمل ہونا ہے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کلر پیلٹ پر رنگ پھیلانے لگیں۔ میں نے تمہارا ریسرچ ورک پڑھا تھا، تم نے کافی محنت کر کے بہت اچھی طرح سے آیات کو سمجھا۔ جنت کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اپنے لیے امید ڈھونڈی، اپنے لیے یقین ڈھونڈا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے ارادوں پر بھروسہ کیا۔ آنسو پلکوں میں شگاف ڈالتے اس کے گال پر پھسلے، دل غم سے، درد سے بھر گیا۔ مسز شرازی کی نظر اس پر پڑی تو پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ وہ ان کے پاس آئی، ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کچھ دیر تک بیٹھی رہی۔ میں 5 سال تک بے اولاد رہی۔ میں نے 5 سالوں تک اس بات پر یقین رکھا کہ میں بانجھ ہوں۔ 5 سالوں تک میں نے۔ اس کی آواز بھیگی، لب کپ کپائے۔ مسز شرازی اسے دکھ سے دیکھ کر رہ گئیں۔ میں ساری زندگی حالات کو سزا سمجھتی رہی، عذاب، بد دعا۔ مجھے لگتا تھا میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوگا، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ میں دعائیں چھوڑ چکی تھی، میں نے یقین ختم کر دیا تھا، مگر آپ نے مجھے یہ سب دوبارہ سکھایا، یقین، حسن ظن اور دعا۔ اور پھر اللہ نے میری سنی، اللہ نے آپ کو سبب بنایا تاکہ میں اس اذیت سے نکل سکوں۔ بہت عرصے تک روتی رہنے والی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو رہی تھیں۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت لیے دل پھر سے رو رہا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ انہوں نے کلر پیلٹ رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔
اندر ہی اندر جب ہم ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمیں اللہ کا ہی آتا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب خود کو سمیٹ کر جوڑنا کیسے ہے اور زندگی کا سفر نئے سرے سے شروع کیسے کرنا ہے۔ اس صورت میں قرآن کی آیات ہمیں زندگی سے جڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہیں۔ یہ ہمارے اندر مثبت سوچ پیدا کرتی ہیں کہ اس مایوسی کی چوٹ پر امید کا کون سا مرہم رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو پونچھے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی، وہ انہیں سن رہی تھی، وہ انہیں سمجھ رہی تھی۔ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن ہماری ایک پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک راستہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اور ایک راستہ اللہ ہمارے لیے چنتا ہے۔ ہمارے لیے کہاں کتنی خیر اور کتنا شر ہے، اللہ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں بڑی تکلیف سے بچا سکے اور ہمیں ہمارے صبر کے بدلے کچھ بہترین عطا کر سکے۔ یکایک ان کا موبائل بجنے لگا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر انہیں دیا۔ جب تک وہ بات کرتی رہیں وہ اسٹوڈیو میں یہاں وہاں ٹہلتی پینٹنگز دیکھتی رہی۔ فارس کا باکس الماری کے اوپری خانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے چونکی، پھر کچھ یاد آ جانے پر مسز شرازی کی طرف مڑی۔ آنٹی؟ وہ بات ختم کر چکی تھیں، موبائل رکھ کر متوجہ ہوئی۔ جی بیٹا؟ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں بوا کے پاس ہوں؟ یہ سوال وہ فارس سے نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ اقصیٰ نے بتایا تھا میرے خیال سے۔ تم بوا کے بیٹے کے گھر گئی تھی شاید۔ اقصیٰ؟ جنت کا منہ کھلا۔ شوق کی سی کیفیت ہو گئی، پھر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ ان سے معذرت چاہتی باہر آ گئی۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اقصیٰ اس طرح کوئی بات فارس کو بتا سکتی ہے۔ اس کے سامنے تو کئی وعدے کیے تھے، اس نے قسمیں کھائی تھیں۔ تن فن کرتی وہ اقصیٰ کے سر پر پہنچ گئی۔ میں نے کہا تھا میرا ہر راز تمہارے ساتھ قبر تک جانا چاہیے۔ اقصیٰ روحانسی ہوئی۔ اب وہ مالکن کو کیسے سمجھاتی کہ اتنی سی عمر میں وہ قبر میں نہیں اترنا چاہتی تھی۔ تم سے ایک چھوٹی سی بات نہیں چھپائی گئی اقصیٰ؟ جنت آپی پلیز معاف کر دیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ آئندہ کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، بھلے سے فارس صاحب مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، بالکل بھی زبان نہیں کھولوں گی۔ تم نے میرا دل، میرا مان، میرا بھروسہ توڑا ہے اقصیٰ۔ جنت حد سے زیادہ جذباتی ہوئی۔ اقصیٰ کو رونا آیا۔ آپی انہیں پتا تھا پہلے سے، وہ جانتے تھے آپ وہاں گئی تھیں، مجھے تو بس وہ کنفرم کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ وہ وضاحتیں دینے لگی۔ جنت کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، بالکل بھی امید نہیں تھی۔ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ آپی اور کیا بتایا تم نے اپنے فارس صاحب کو؟ ڈانٹ کر پوچھا۔ بس وہ ایک ذرا سی بات بتائی تھی، اس نے ڈر کر اعتراف کیا۔ جنت کا دل زور سے دھڑکا۔ اور کون سا راز فاش ہو گیا تھا اس کا؟ کیا بتایا؟ خشک ہونٹوں کو تر کر کے پوچھا۔ یہی کہ جب ہم پارک گئے تھے تو آپ روتی رہیں اور آپ نے کہا بھاڑ میں جائے فارس وجدان۔ جنت پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ جس رخ کھڑی تھی، جس انداز میں کھڑی تھی، کھڑی رہ گئی۔ دماغ نے سمجھایا اسٹیٹمنٹ کمال کی تھی، سو دل میں سکون اتر گیا۔ یکایک فضا اچھی ہو گئی، موڈ اچھا ہو گیا۔ ایسے راز تو بالکل فاش ہونے چاہیے، لیکن اقصیٰ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور جب ہم مال گئے تھے تو آپ نے ان کے لیے گفٹ خریدا تھا اور نیلے رنگ کے بڑے بڑے دلوں والا کارڈ بھی بنوایا تھا، اور اس پر آپ نے لکھوایا تھا لو یو مائی ڈیئرسٹ فارس وجدان۔ جنت بھونچکا سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کب ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ اس نے کب لکھوایا یہ جملہ؟ کب کارڈ بنوائے؟ کب گفٹ خریدا؟ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ وہ اس دن شام میں مال گئے تھے ہم، اقصیٰ نے گھبرا کر یاد دلایا، جب آپ نے وہ سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور آپ کے جوتے کا اسٹریپ ٹوٹ گیا تھا۔ دماغ پر منظر تازہ ہوا اور جنت کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
लेकिन ज़मीन में समाने से पहले अक्सा का गला दबाना ज़रूरी था। आप भी माफ़ कर दें। उसे अपनी तरफ लपकता देखकर वो सुर्ख ईंटों की क्यारी पर चढ़ गई। ऊपर कहीं बालकनी का दरवाज़ा स्लाइड हुआ। गहरी सांस लेकर बालों में हाथ फेरा गया, फिर रेलिंग पर कोहनियाँ जमाए इतराफ पर जायज़ा लेने की कोशिश की गई और तभी निगाह लॉन के उस हिस्से पर ठहर गई जहाँ जन्नत कमाल अक्सा के साथ मौजूद थी। आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर अंदाज से वाज़ेह था लड़ाई हो रही है। अक्सा, तुम। उफ़ मेरे अल्लाह, क्या करूँ अब मैं तुम्हारा? वो सर पकड़कर दबी आवाज़ में चिल्लाई। तो क्या नहीं लिखवाया था? उसने रुंधी हुई आवाज़ में दुहाई दी। वो फ़ारिस के लिए नहीं था, उसे रोना आ रहा था। मैंने ज़ैद के लिए कार्ड बनवाया था, तुमने देखा था फ़ारिस का नाम लिखा हुआ? हाँ? नफ़ी में सर हिलाते हुए अक्सा ने उँगलियां मुंह में दाब ली। लेकिन वो, मैं समझी कि आपने उनके लिए, तुम्हें फ़ारिस साहब रिमोट कंट्रोल कार से खेलते हैं? वो भिन्न आई। मुझे लगा वो डेकोरेशन पीस है उनकी स्टडी के लिए। अक्सा के पसीने छूट रहे थे। तुम खुद से क्या-क्या मफ़रूज़े घड़ती रही हो अक्सा? उसे जी भर कर रोना आया। अब वो क्या समझता रहा होगा कि मैं उसकी मोहब्बत में मरी जा रही थी, कार्ड लिखवाती फिर रही थी। आपी, मिस्कीन सी सूरत बनाकर अक्सा ने कान पकड़े। आइंदा नहीं बताऊंगी। आइंदा तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी भी नहीं। तुम फ़ारिस की जासूसा, सिर्फ उसी के साथ ही सिंसियर हो। वो गुस्से से पलट गई। अक्सा ने आंखें फाड़कर मालिकन को देखा। लक़ब अच्छा था, फ़ारिस की जासूसा। लेकिन मालिकन ज़्यादा अहम थी। फ़ौरन से उसके पीछे भागी। आप ही माफ़ कर दें प्लीज़। सदर दरवाजे के पास रुककर जन्नत झटके से उसकी तरफ मुड़ी, हाथ उठाकर उसे रोका। सब खत्म। अक्सा के सीने पर हाथ पड़ा, कंधे झुक गए, शक्ल रोनी हो गई। जन्नत अंदर चली गई थी। मिस्कीन सी सूरत बनाए अक्सा वहीं खड़ी रह गई। वो कमरे में आई तो फ़ारिस मौजूद नहीं था। अटैच्ड बाथ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने बेड साइड टेबल्स की तलाशी लेकर अपना मोबाइल उठाया और नीचे आ गई। किचन काउंटर टेबल पर बैठे हुए मोबाइल ऑन किया। मिस्ड कॉल्स के काफ़ी नोटिफिकेशन थे। गैलरी बिल्कुल साफ थी। अरीना ज़ुबैर की तरफ से व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली तस्वीर और मैसेजेस मिटाए जा चुके थे। वो फ़ारिस की इस हरकत पर लब भेज कर रह गई। बेशुमार अनदेखे मैसेजेस आयमा की तरफ से मुंतज़िर थे। सायरा खाला और सिदरा के मैसेजेस भी। उसने मिसेज लगारी की व्हाट्सएप चैट खोली, नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल करती गई। कितनी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की इबारतें थीं, सवाल थे, फूल और रंग बिरंगे दिल थे, रिकॉर्डिंग्स थीं। वो एक एक करके सुनती गई। जैद की बातें, उसके किस्से, दोस्तों से लड़ाई, अपनी नन्ही बहन की शरारतें, माँ से नाराज़ी और फ़ारिस की शिकायतें तो इतनी थीं कि बस। वो सुनती गई और हैरान होती गई कि उसकी तरफ से ओके, फाइन, डोंट वरी जैसे मुख्तसर मैसेजेस भी भेजे गए थे। आखिरी रिकॉर्डिंग्स में वो मंगनी की अंगूठी के बारे में पूछ रहा था। एक नीले रंग की थी और दूसरी गुलाबी रंग की। पारिस ने गुलाबी रंग वाली अंगूठी को डन करके वो नंबर ब्लॉक किया हुआ था और वो अपनी जगह शुश्तर सी बैठी थी। समझता क्या है ये खुद को? तड़प कर नंबर अनब्लॉक किया। जैद को रिकॉर्डिंग भेजी, शुक्रिया अदा किया, मैसेज भी किया कि उससे बात नहीं कर सकी। फिर आयमा के मैसेजेस का जवाब दिया। उसी वक्त उसकी कॉल आ गई। ओ माय गॉड जन्नत, तुम कहाँ से जिंदा हो गई? वो खफीफ सा हंसी। फारिस भाई ने बताया था तुम अपने मैके गई हुई हो। हाँ, वो मेरी खाला की तरफ थी, खंखार कर कहा, साथ ही ग्लास में पानी उंडेला। मुझे तो पूरा शक था लड़कर गई हो, इसीलिए फारिस भाई उदास फिर रहे थे। पानी पीते हुए जन्नत को जोर का अच्छू लगा। खांसते हुए ग्लास टेबल पर रखा। उदास फिर रहे थे? सदमा। मसला हल हो गया क्या? आयमा की आवाज़ में शरारत थी। मसला तो कोई नहीं था। वो घबराई। ओह कम ऑन जन्नत, शायद तुम भूल रही हो, मेरी एक अदद भाभी भी हैं। वो जब भी मैके जाती हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती। भाई पहुंच जाते हैं लेने, लेकिन एक बार जब उन दोनों की लड़ाई हो गई थी तो भाभी पूरा महीना मैके रहती रही थी। वो बताते हुए हंसी और जन्नत ने बेसाख्ता अपनी पेशानी को छुआ। ये आयमा कितनी पहुंची हुई चीज़ थी। हाँ मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? मैसेज के जवाब क्यों नहीं दिए तुमने? वो दरअसल
वो सही मानों में फंस गई। दूसरी तरफ आयमा आंखों में शरारत लिए बैठी थी। अच्छा छोड़ो, उसे जैसे तरस आ गया। मैं तुम्हारी नंद भी तो हूँ, किसी मामले में मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं तो अपनी भाभी का पूरा पूरा साथ देती हूँ। नाराज़ होकर जब मैके जाती हैं तो उनकी तैयारी मैं खुद करवाती हूँ। भाई की सारी खबरें भी मैं ही पहुँचाती हूँ। कहाँ से आ रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने उदास हैं या कितने खुश नज़र आ रहे हैं, सब। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। जन्नत हंस दी। आयमा को बात करके अच्छा लगा। अजीब सी उनसियत होती थी उसे जन्नत से। शाम का क्या प्लान है, कहीं बाहर चलें? वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन, पढ़ाई और आखिरी सेमेस्टर का रोना धोना शेयर करने के बाद पूछ रही थी। जन्नत को मिसेस शिराज़ी के साथ कुछ वक्त गुजारना था, फिर तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए माजरत कर ली। मैं खुद बताऊंगी तुम्हें, फिर प्लान करेंगे कुछ। आयमा से बात करने के बाद कुछ देर तक सायरा खाला को सोचकर फिक्रमंद होती रही। कई बार कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और हर बार कॉल करते करते रुक जाती। इन्हीं उलझनों में घिरी बैठी थी कि ज़ैद अपनी नन्ही बहन का हाथ थामे स्कूल यूनिफॉर्म में ही उस स्कूल से वापसी पर सीधा उससे मिलने आ गया। वो बहुत खुश हुई। बच्चे मिसेस शिराज़ी से मिलकर और उनकी पेंटिंग्स का नज़ारा करके आए तो वो किचन में थी। अपने नन्हे मेहमानों की खातिर मदारात में हलकान होती, वो डाइनिंग टेबल पर प्लेटें रख रही थी जब उसने फारिस रिश्तेदार को सीढ़ियाँ उतरते देखा। नीली जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस भीगे बाल कुछ सलीके से जमे हुए, आंखों में हल्की सी सूजन अभी भी मौजूद थी। जैद की नज़र उस पर पड़ी तो उसका फूला हुआ चेहरा मजीद फूल गया। गुड मॉर्निंग। डाइनिंग हॉल से गुजरते हुए उसने कह दिया। गुड आफ्टरनून कहो। जन्नत के मुंह से बेसाख्ता निकला। मौसूफ ने कलाई मोड़कर वक्त देखा, फिर पेशानी मसली, झुक के प्लेट से फ्रेंच फ्राइज उठाए और राहदारी की तरफ बढ़ गया। शिकायतों की पटारी खुल गई। जैद शुरू हो गया। कहते थे आप घर पर नहीं हैं, कभी कहते थे आप सो रही हैं, कभी कहते थे आप बिजी हैं। मैंने आपको कार्ड भी लिखा था, कैंडी भी भेजी थी। मैं सूजी को भी लाया था, उन्होंने मुझे डांट दिया। जन्नत ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा किया। उस दिन हम बाहर खेल रहे थे, उन्होंने मेरा फुटबॉल मुझे वापस नहीं किया। ये एक और किस्सा था। जन्नत ने कुछ हैरत से उसे देखा। ये तो वो भी जानती थी कि फारिस बच्चों से उलझ पड़ता है, मगर ऐसे उलझता होगा उसकी तवक्को नहीं थी। आपको ये भी तो बताना चाहिए कि फुटबॉल मेरे सर पर लगा था। फारिस की आवाज़ पर जहाँ जैद चौंका, वहाँ इतने करीब से उसकी आवाज़ आने पर वो गड़बड़ाई। वो उसकी कुर्सी के पीछे बहुत करीब से झुका हुआ था, हाथ बढ़ाकर जैद की प्लेट से मजीद फ्रेंच फ्राइज उठा रहा था। जैद ने लड़ाका औरतों की तरह कीना तोज नजरों से उसे घूरा, फिर अपनी प्लेट पर दोनों हाथ रख लिए कि अब उठा कर दिखाओ। उसकी नन्ही बहन बड़े मजे में थी। पुरतजस्सुस निगाहों से कभी भाई को, कभी फारिस को देखती, फिर दूसरे निवाले के लिए मुंह खोलकर जन्नत की तरफ रुख कर लेती। वो जेब में वॉलेट रखता बाहर चला गया। मुझे ये बिल्कुल भी ज़रा सा भी अच्छे नहीं लगते। जैद ने 1000 बार कहे जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया था। वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो किचन काउंटर पर मोबाइल हाथों में लिए बैठी थी जब सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही पारिस विजदान किचन में आ गया। बच्चों के जाने के बाद वो अभी उसे अकेली नजर आई थी। कैसी हो? उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए पूछा, आवाज भारी, लहजा ठहरा हुआ। जैसी भी हो, तुम्हें इससे क्या? मोबाइल पर खुद को मसरूफ जाहिर करते अपना गुस्सा निकाला। खैर से अब तुम ये तो नहीं कह सकती। जन्नत ने सर उठाकर एक सुलगती निगाह उस पर डाली। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, दांत पीस कर जवाब दिया। फारिस ने रुककर उसे देखा। वो मोबाइल पर नजरें जमाए खुद को मसरूफ और बेनियाज जाहिर कर रही थी, मगर आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो उसकी मौजूदगी पर कतन खुश नहीं लग रही थी। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई भी जवाब दिए बगैर उसने सर उठाकर यहाँ वहां देखा। कुछ और नजर ना आया तो कटिंग बोर्ड पर प्याज और छुरी रखी हुई नजर आ गई। फौरन से आस्तीनें चढ़ाकर शुरू हो गई। ख्याल था जब वो उसे मसरूफ देखेगा तो कोई बात नहीं करेगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। फारिस ऐन उसके पीछे आन खड़ा हुआ।
میں طلاق بھی نہیں دینا چاہتا اور چاہتا ہوں کہ تم کورٹ بھی نہ جاؤ۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جنت کی دھڑکنیں تھم گئی، سماعت پر یقین نہیں آیا۔ گردن موڑ کر اس نے فارس کو صدمے سے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کے کپڑوں سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبو بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ مذاق اڑا رہے ہو تم میرا؟ خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ غلط انسان کے سامنے غلط خواہش کا اظہار کر رہے ہو۔ رخ بدل کر وہ پھر سے پیاز کاٹنے لگی۔ میں اپنے بچے کی ماں سے بات کر رہا ہوں، جھک کر سرگوشی کی۔ جنت کے ہاتھ ساکت ہوئے، دھڑکن تیز ہو گئی، پھر سنبھل کر لب بھیج کر اسے دیکھا، گویا اپنے بچے کے لیے اس رشتے کو بحال کرنا چاہ رہے ہو۔ نہیں، یہ کام میں صرف تمہارے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ دم سادھے اگلے کئی لمحوں تک ایک ہاتھ میں چھری دوسرے ہاتھ میں پیاز لیے کھڑی رہ گئی، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو اس سے یہ بات فارس وجدان نے کی ہے۔ اچھا مذاق ہے یہ، اذیت سے بڑبڑا کر رخ بدل گئی۔ مگر میں تو سنجیدہ ہوں۔ چھری پٹک کر اس نے رخ بدلا۔ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کوئی مجھ پر ترس کھائے۔ اس کی آواز تیز ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر ترس کھا سکتا ہوں؟ اس نے جنت کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ دم سادے کھڑی رہی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس نے ضبط کر کے تحمل سے پوچھا تھا۔ بتایا تو ہے تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میرے لیے؟ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد اس ایک لمحے میں ختم ہوئی تھی۔ تمہارا دل چاہے گا تو تم نکاح کو کاغذ تک رکھو گے، پھر میرے احساسات کی فکر کیے بغیر اپنا جائز حق بھی وصول کر لو گے۔ تمہاری مرضی تم میں مجھے ساتھ رکھو، تمہاری مرضی تم مجھے طلاق دے دو، سب تمہارے اس دل کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس نے فارس کے سینے پر انگشت شہادت ٹھونکی۔ اور تم کہہ رہے ہو میرے لیے کر رہے ہو؟ روح کا درد آنکھوں سے کیسے جھلکتا ہے، اذیت لفظوں میں کیسے اترتی ہے، آواز کیسے چھلکتی ہے، یہ اس لمحے فارس وجدان نے جانا تھا۔ تم کسے بے وقوف بنا رہے ہو، مجھے یا خود کو؟ بظاہر مضبوط لہجہ، مضبوط آواز، مگر وہ اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بات کی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اقرار یا انکار کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جیسے میں نہیں جانتی کہ تم اختیار چھیننے میں کتنے ماہر ہو۔ وہ آنکھوں میں دکھ اور پچھتاوا لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بہت سی باتیں وہ نظر انداز کر گیا تھا، بہت سی الجھنیں اسے یاد نہیں رہی تھی۔ گرا سخت تھی، اب سخت ترین ہو گئی تھی۔ وہ اس کے خدشات کی تہہ تک اب پہنچا تھا، اس کی پریشانیوں کو جیسے اب سمجھا تھا۔ جنت کا یقین ٹوٹا تھا، اس کا اعتماد بکھرا تھا۔ اس نے یہاں اس گھر میں رویے کی اذیت سہی تھی، بے روحی کو جیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اسے موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا خوف بجا، اس کی پریشانی جائز تھی۔ میں نے صرف ایک چانس مانگا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مڑ کر وہ ایک بار پھر پیاز کاٹنے لگی تھی، اس کے پیچھے وہ خاموش کھڑا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، تسلی یا مداوا کا ایک لفظ ہی صحیح، مگر لفظوں کی قلت تھی اور ہمت تو صفر ہو چکی تھی۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا، جیبوں سے ہاتھ نکالے اور کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا۔ جنت نے چھری رکھ دی، کنارے پر ہاتھ جمائے سر جھکا گئی، آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو کسی نئے غم سے بچانے کے لیے اس نے پیاز کاٹنا شروع کی تھی، مگر اندر تک وہ پھر بھی کٹ گئی تھی۔ سارا دن خود سے الجھتے رہنے کے بعد شام تک سائرہ نے ہمت کر کے جنت کو کال کی تھی۔ انہیں ڈر تھا وہ کال ریسیو نہیں کرے گی، مگر اس نے کر لی تھی۔ السلام علیکم خالہ۔ اس کی آواز کمزور نہیں تھی، مگر جانے کیوں انہیں لگا جیسے جنت کمال کو مخاطب ہونے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ وعلیکم السلام۔ اتنی ہی مشکل انہیں ہوئی تھی، اتنی ہی دقت، اتنی ہی صعوبت کے مراحل سے گزرنا پڑا تھا انہیں۔ اب وہ کیا کہیں اس سے، کس بات کا شکوہ کریں، کس امر پر خفگی دکھائیں، کیسے پوچھیں اس نے گھر کیوں چھوڑا، ان سے رابطہ کیوں نہ کیا، اپنے مسئلوں سے آگاہی کیوں نہ دی۔ وقت پوچھنے کا نہیں رہا تھا، اب اعتراف کی ساعت تھی۔ مجھے معاف کر دو۔
किस कदर हिम्मत से उन्होंने कहा था, और दूसरी तरफ एक सदमा भरी खामोशी छा गई थी। किस बात की माफ़ी खाला? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। मोबाइल कान से लगाए नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछ लिए थे। तुम मुझसे नाराज़ थी, तुमने घर छोड़ दिया लेकिन मुझसे बात नहीं की। निचला लब काटते हुए वो ज़रा शर्मिंदा हुई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पहले भी मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ी है नहीं थी। एक गैर अमीन ठिकाने से वो सिर्फ एक अमान वाली जगह चाहती थी। उसे घर नहीं चाहिए था, जिंदगी नहीं चाहिए थी, दूरी चाहिए थी, खानदान से, रिश्तों से, अजियतों से, तकलीफों से, तंज और तानों से, और इन सजाओं से जो कितने सालों से वो झेल रही थी। और तो और कोई ख्वाहिश नहीं थी, उसने जाहिर किया, और तो किसी शय की तलब न थी। अब्बू तुम्हें खुश देखना चाहते थे। उनकी आवाज़ लरस रही थी। जन्नत, मैं उनकी वसीयत पर अमल नहीं कर सकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा नहीं है, वो रूहान सी हुई। ऐसा ही है बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। खाला, आई एम प्रेग्नेंट। किस कदर हिम्मत से उसने कहा था। उनकी आंखों में नमी ठहर गई, लब साकित हो गए। बांझ है ये, बांझ कभी माँ नहीं बन सकती। अब मेरा बेटा ऐसे ही बे औलाद रहेगा सारी उम्र। उसकी ताई की आवाज़, गुस्सा, नफरत, जन्नत के 5 सालों का सब्र उनकी आंखों में घूम गया। जिस महरूमी की वजह से वो हर जगह से रद्द हुई थी, वही महरूमी किसी और की जिंदगी में अता बन गई थी, अता हो गई थी। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के मामलात अल्लाह ही जान सकता है, वरना इनके जैसे लोग तो सिर्फ साहिल पर रुक कर गहराई का अंदाज़ा लगाया करते थे, खुद से मफरूज़े घड़ा करते थे, अपनी नेमतों पर इतराया करते थे, अपनी मसलहतों पर मुस्कुराया करते थे। तुम तुम माँ बनने वाली हो? खुशी से आंसू छलक पड़े। गम से मुर्दा होता दिल इस खबर पर जिंदा हुआ, वो रो पड़ी। अब आप कैसे सोच सकती हैं मैं खुश नहीं होंगी? उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। सायरा खाला एहसास निदामत में घिर गईं, वो अब भी उनसे मुतल्लिक खुशगुमान थी। एक लम्हे के लिए भी गलत नहीं सोच रही थी, उल्टा उन्हें समझा रही थी, उन्हें तसल्ली दे रही थी। मुझे यहाँ आकर पता चला है खुशी एक नेमत है, और सुकून इससे भी बड़ी नेमत। खुशियों का ताल्लुक दुनियावी नेमतों से है, और सुकून का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से। दिल अल्लाह से जुड़ जाए खाला, तो फिर ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आसान हो जाती है। उसका एक एक लफ्ज़ उनके दिल की अथाह गहराइयों में उतर गया। वो कितनी ख़ास थी, उन्होंने कभी समझा ही नहीं। तुम कितनी बड़ी बातें करने लगी हो। उन्होंने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। वो हंस दी। बड़ी बातें समझने के लिए उसे बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। अब सब ठीक है ना? और फारिस, फारिस तुम्हारे साथ कैसा है? जन्नत की गुमशुदगी के बाद फारिस की दीवानावार जस्तजू और फिक्रमंदी वो अपनी आंखों से तो देख ही चुकी थी, मगर अब जैसे वो आंखों पर यकीन नहीं रखना चाहती थी, अब गहराई में उतरना चाहती थी, अब खाला होना चाहती थी। कोई भी मसला हो तो मुझे बताओ, मैं और तुम्हारे खालू उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुई थी, मगर चाहकर भी कोई शिकवा शिकायत ना कर सकी। ज़हन ब्लैंक हो गया। यूँ लग रहा था जैसे इंसानों को बताने के लिए अब तो कोई मसला है ही नहीं। जैसे पहले सभी मामलात अल्लाह ने सँभाले थे, तो अब भी वही सँभालेगा। जन्नत, अब तो सब ठीक है खाला, सोच समझ कर कहा। घर छोड़ना मेरी गलती थी, फारिस ने थोड़ी ना निकाला था। गो के पैरों तले ज़मीन नहीं थी, ना सर पर आसमान रहा था, मगर जिस फ़िज़ा में वो मौलिक थी, उस फ़िज़ा ने दोनों को जोड़ रखा था। बात खत्म हो गई, फोन बंद हो गया। सायरा को यूं लगा जैसे मसला सुलझ गया हो, जमीर की मलामत थोड़ी कम हो गई हो, मगर बेसुकूनी हनूज कायम थी। आपने अपनी तरफ से मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। रात का जाने कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, बराबर में मिसेस शिराजी। उसे अपनी तबीयत में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। शायद चक्कर आ रहे थे या फिर मतली सी हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो सर घूम कर रह गया। चंद लम्हों तक गहरी सांसें लेती रही, फिर उठकर बाहर आ गई।
उसे यकायक तय हुई शाम को ली जाने वाली खुराक बाहर थी। वॉश बेसिन पर गिरफ्त जमाए उसने खुद को आईने में देखा। शक्ल धुंधली और चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। रोशनी मौजूद रही, दरवाज़ा साकित रहा। नहीफ आवाज़ उस तक नहीं पहुंची थी। उसे बेख्तियार रोना आया। फारिस कुशन उठाकर फेंका। अब वो रो रही थी। दिल फटा जा रहा था। अजीब वहशत और घबराहट हो रही थी। मंजर कुछ और धुंधलाया था। कुव्वत कुछ और मिट गई थी। उसे लगा वो नहीं आएगा। फारिस एक बार फिर उसे पुकारा। यकायक दरवाज़ा खुल गया। उसने फारिस को बाहर निकलते और फिर उजलत में अपनी तरफ आते देखा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कंधों से थाम कर पूछा था। आंखों में फिक्र, लहजे में परेशानी थी। उसने रोते हुए नफे में सर हिलाया। वजूद अब बेजान हो रहा था। उसे लगा वो अब मरने वाली है। जन्नत, वो आखिरी आवाज़ थी जो उसने सुनी, वो आखिरी चेहरा था जो उसने देखा। रोशनी तेज हो गई, आवाज़ें मध्यम, जैसे कोई पुकारते हुए दूर, बहुत दूर होता जा रहा हो, और फिर सब तारीक हो गया। दाहिने हाथ की पुश्त पर कहीं चुभन का एहसास हुआ। जहन पर छाई हुई धुंध छटने लगी। आवाज़ों को मफहूम मिल गया। उसका बायां सर्द हाथ किसी की गिरफ्त में था। नरम सी गिरफ्त, जैसे नाना के हाथों की हुआ करती थी। उसने जो उंगलियों को जुम्बिश देते हुए हाथ बंद करना चाहा। जहन एक बार फिर गनूदगी में चला गया। दोबारा उसे होश आया तो अस्पताल के कमरे में नीम तारीकी सी थी। नाना वहाँ कहीं नहीं थे। दाहिने हाथ पर ड्रिप लगी थी। सामने ही खिड़की के पास फारिस मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। उसे होश में आता देखकर उसके पास आ गया। क- क्या हुआ है मुझे? उसकी आंखों में खौफ समाया हुआ था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेटी रहो। फारिस ने हाथ थाम कर तसल्ली दी। तकिए पर सर रखते हुए उसने दाहिने हाथ से पेशानी को छुआ। अब कैसी तबीयत है? वो बराबर में बैठकर पूछ रहा था। आंखों में फिक्र थी। ठीक हूँ, उसने कहा। सर अभी भी कुछ भारी था, मगर पहले जैसी हालत नहीं थी। गहरी सांस लेकर कमरे का जायजा लिया। नीलगु रोशनी में एक पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई थी। खिड़कियों की उस पार रात अभी भी बाकी थी। क्या टाइम हो रहा है? उसकी आंखें कुछ देर के लिए खुलती थीं, फिर बंद हो जाती थीं। 2:30 बज रहे हैं। मुझे भूख लग रही है। इख्तलाफ, नाराज़ी, गुस्सा अपनी जगह, मगर रिस्क पर कोई समझौता नहीं। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। एक नरम सी निगाह उस पर डाले वो उठ गया। खुश्क लबों को तर करते हुए जन्नत ने गहरी सांस ली। फारिस, तुम यहाँ? वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला ही था जब कोई औरत उसके सामने आ गई थी। खैरियत है? जन्नत की आंखें खुल गई। बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। माई वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसने सुना। फारिस की पुश्त नजर आ रही थी। ओह, क्या हुआ अदीना को? ठीक तो है वो? मेरी तो काफ़ी अरसे से मुलाकात ही नहीं हुई। जन्नत की धड़कन थम गई। फारिस ने अधखुला दरवाज़ा खींच कर बंद कर दिया। आवाज़ें मादूम हो गईं। दरवाजे के नीचे कदमों के आसार भी गायब हो गए। कमरे में खामोशी वजूद में उतर आई। शब का अंधेरा आंखों में हलूल कर गया। वो चंद लम्हों तक दम साधे पड़ी रही, फिर करवट बदलकर आंखों पर बाजू रख लिया। औसाफ मंजिल में एक से जायद काम वालियों का इजाफा हो चुका था। शादी के दिन करीब थे तो उसके ज़िम्मे हिस्से का काम भी बढ़ गया था। आज समरीन की मेहंदी थी। मेहमानों से भरे घर में हर तरफ रंग बिरंगे आंचल ही नजर आ रहे थे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वो बच्चे के साथ ही छोटे मोटे काम निपटा रही थी और गाहे बगाहे आने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों का भी जायजा ले रही थी। बच्चे की माँ तारिक साहब की सगी बहन थी। अपनी भतीजी की शादी पर तो ज़रूर आएगी, मगर उसे अभी तक कोई ऐसी औरत नज़र नहीं आई थी जिसके मुतालिक वो ये गुमान करती कि वही इस बच्चे की माँ होगी। ज़्यादातर चेहरों को वो पहचानती थी। कोई भी नया चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मेहमानों की देखभाल और उन्हें मशरूफ पेश करने की जिम्मेदारी उस पर आई तो उसने इस नन्ही जान को किचन के दरवाजे के पास बिठाया। सुगरा को उस पर नज़र रखने का कहा और ट्रे उठाए सीढ़ियाँ चढ़ गई। ख्याल था बस 2 मिनट में पेश करके नीचे आ जाएगी, मगर 2 से 10 मिनट लग गए।
नीचे आई तो सोहरा उसे उठाए खड़ी थी। बच्चा दर्द की शिद्दत से चीख चीख कर निढाल हो चुका था। हाय अल्लाह जी, इसे क्या हुआ? वो बौखला गई। दरवाजे में हाथ आ गया। नन्हे से सुर्ख हाथ पर नजर पड़ते ही रूबी के पैरों तले से गोया जमीन निकल गई। मैं कहकर गई थी इसका ख्याल रखियो। ए हे, कितने काम देखूं मैं। सोहरा तपी खड़ी थी। वो रोते बिलखते बच्चे को उठाए इसी वक्त तारिक साहब के पास चली गई, जो खाने का हिसाब किताब देख रहे थे। वो जी, बच्चे का हाथ आ गया दरवाजे में। उन्होंने सर उठाया, एक नज़र उसे देखा, दूसरी नज़र रोते हुए बच्चे पर डाली, फिर पास खड़े बेटे से यूं मुखातिब हुए जैसे उन्होंने रूबी की कोई बात सुनी ही ना हो। वो मसला ज़्यादा अहम था जिसमें वो उलझे खड़े थे। वो अपनी जगह खड़ी रह गई। फिर वो मालकिन के पास गई, उसके बाद अपने बड़े साहब के छोटे भाई के पास। मायूस होकर वो रशीदा के यहाँ चली गई। इसे हस्पताल ले जाओ रशीदा। बच्चे की हालत देखकर खुद रशीदा को तरस आ गया। फौरन से चादर उठाई, बच्चा लिया और अस्पताल चली गई। इस तमाम अरसे में रूबी खाली उस जहनी की कैफियत में अपने मालिकों का काम करती बोलाई बोलाई सी फिरती रही। नन्ही नन्ही सी उंगलियां कितनी सुर्ख हो रही थीं। चांद से चेहरे पर, गाल और माथे पर कैसे खराश आई हुई थी, और वो कितना चीख चीख कर रो रहा था। वो उसे सोच सोच कर बहुत परेशान होती रही। मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। फारिग होकर वो बाहर से इनकी सीढ़ियों पर जा बैठी। नोकिया का टच मोबाइल हाथ में था। मुंतजिर निगाहों से स्क्रीन को तक रही थी। बैलेंस तो था ही नहीं कि कॉल कर लेती, ना ही कभी कॉल करने की ज़रूरत पेश आई थी। अम्मा ही फ़ोन करती थी। यकायक मोबाइल बज उठा। रशीदा की कॉल थी। मैं पहुंच गई हूँ घर, आ जा आप। वो फौरन से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। उजलत में कदम उठाती दाएं तरफ गली में मुड़ गई और जो पहला दरवाजा नजर आया उसे खोलकर अंदर चली गई। बिल्कुल सामने ही चारपाई पर रशीदा बैठी थी। बच्चा पहलू में ही सोया पड़ा था। कुछ बेकरारी से वो उस पर झुकी, उसका माथा चूमा, उसके नन्हे नन्हे से हाथ को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। एक हाथ से पंखा चलते हुए रशीदा ने ठंडी आह भरी। डॉक्टर ने तो मुझे अच्छी खासी झाड़ पिला दी। समझ रही थी मेरा बच्चा है। मेरी लापरवाही से हाथ दरवाजे में आ गया होगा। और चोट सिर्फ एक तो नहीं थी रूबी। कल साइमा बीवी के बेटे ने धक्का दिया था तो सीढ़ियों से गिर गया, उसने गुलूगीर आवाज में बताया। रशीदा गहरी सांस लेकर रह गई। देख रशीदा, सर उठाकर मुखातिब हुई। यतीम बच्चे के लिए एक जरा सा काम ही तो कहा है तुझे। तू तो ऐसे कह रही है जैसे ये काम बहुत आसान हो। भाई मुझे क्या पता इसका चचा कौन है, कहाँ रहता है, ना मुझे इसकी माँ की कोई खबर है। तू इतने सालों से इनके पड़ोस में रह रही है, कुछ तो पता होगा तुझे, कुछ तो। देख, मुझे बस इतना पता है वो कोई बड़ा अमीर आदमी है, इस्लामाबाद में रहता है, बस। रशीदा ने बाकायदा सर पर दुपट्टा जमाते हुए हाथ खड़ा किया। तू अपने घर वाले से बात तो कर, कुछ तो पता होगा उसे। मुझे बस फोन नंबर चाहिए या फिर घर का पता, बाकी मैं सब खुद देख लूंगी। रशीदा ने ताज्जुब से इस धान पान सी लड़की को देखा जिसका खुद का कोई सहारा न था। वो लावारसों की तरह पलते इस बच्चे के लिए सहारा ढूंढ रही थी। क्या खबर तेरी ये नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और वो तेरे लिए आसानियां कर दे। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई तो रशीदा ने ठंडी आह भरी। अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं कर सकती। रूबी ने खुश होकर ममनून निगाहों से उसे देखा, फिर बच्चे को एहतियात से बाजुओं में उठा लिया। दवाइयों को शॉपर भी साथ था। डॉक्टर ने कह रही थी बच्चा बहुत कमजोर है, सेहत का ख्याल रखो, तशवीश से कहा। जितना हो सके रखती तो हूँ, दूध में पानी डाल के देती हूँ। बड़ी बेगम एक एक चीज पर नजर रखती है। रशीदा को अफसोस हुआ। तू मेरे से ले जाइए, कुछ चाहिए हो तो। जालिम लोग अल्लाह के कहर से नहीं डरते, यतीम के साथ ऐसा सलूक। वो उसे सीने से लगाए चौखट अबूर कर गई। घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में गई। बच्चे को एहतियात से सुलाने के बाद चारपाई को खींच खांच कर खिड़की के पास रखा। बराबर में बैठकर बहुत नरमी और अफसोस से उसके चेहरे को देखा। लंबी पलकों पर जगह जगह नमी ठहरी थी। सुता हुआ गुलाबी चेहरा कितना जर्द हो रहा था। नन्हे नन्हे से होंठ भिंचे हुए थे। वो वाकई में बहुत कमजोर लग रहा था। बस कुछ दिन और, तुझे मैं यहाँ तो नहीं रहने दूंगी, उसके गिर्द बाजू डाले तसल्ली दी। खिड़की के उस पार एन सामने शादी वाला घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की आमदोरफ्त ताहाल जारी थी।
دروازے کے پاس ہی طارق صاحب کھڑے تھے، کچھ پیسوں کا حساب کرتے ہوئے۔ اللہ کے قہر کو دعوت دیتے لوگ اللہ کے نام پر، صدقہ خیرات کے نام پر اچھی خاصی رقم نکالنے کا سوچ رہے تھے تاکہ ان کی اولاد کی خوشیاں سلامت اور محفوظ رہیں۔